خالد میاں، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ ممتاز نے صبح سویرے اٹھ کر حسب معمول تینوں کمروں میں جھاڑو دی، کونے خدروں سے سگریٹوں کے ٹکڑے، ماچس کی جلی ہوئی تیلیاں اور اسی طرح کی اور چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں۔ جب تینوں کمرے اچھی طرح صاف ہو گئے تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کی بیوی باہر صحن میں سو رہی تھی، بچہ پنگوڑے میں تھا۔ ممتاز ہر روز صبح سویرے اٹھ کر صرف اس لیے خود تینوں کمروں میں جھاڑو دیتا تھا کہ اس کا لڑکا خالد اب چلتا پھرتا تھا اور عام بچوں کے مانند ہر چیز جو اس کے سامنے آئے اٹھا کر منہ میں ڈال لیتا تھا۔ ممتاز ہر روز تینوں کمرے بڑی احتیاط سے صاف کرتا، مگر اس کو حیرت ہوتی جب خالد فرش پر سے اپنے چھوٹے چھوٹے ناخنوں کی مدد سے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا لیتا۔ فرش کا پلستر کئی جگہ اکھڑا ہوا تھا، جہاں کوڑے کرکٹ کے چھوٹے چھوٹے ذرے پھنس جاتے تھے۔ ممتاز اپنی طرف سے پوری صفائی کرتا، مگر کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا، جو اس کا پلوٹھی کا بیٹا خالد، جس کی عمر ابھی 1 برس کی نہیں ہوئی تھی، اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتا۔ ممتاز کو صفائی کا خبر ہو گیا تھا۔ اگر وہ خالد کو کوئی چیز فرش پر سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتے دیکھتا تو وہ خود کو اس کا ملزم سمجھتا، اپنے آپ کو دل ہی دل میں کوستا کہ اس نے کیوں بد احتیاطی کی۔ خالد سے اس کو پیار ہی نہیں، عشق تھا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جو خالد کی پہلی سالگرہ کا دن نزدیک آتا تھا، اس کا یہ وہم یقین کی صورت اختیار کرتا جاتا تھا کہ اس کا بیٹا 1 سال کا ہونے سے پہلے پہلے مر جائے گا۔ اپنے اس خوفناک وہم کا ذکر ممتاز اپنی بیوی سے بھی کر چکا تھا۔ ممتاز کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ اوہام کا بالکل قائل نہیں۔ اس کی بیوی نے جب پہلی بار اس کے منہ سے ایسی بات سنی تو کہا، آپ اللہ کے فضل سے ہمارا بیٹا 100 سال زندہ رہے گا۔ میں نے اس کی پہلی سالگرہ کے لیے ایسا اہتمام کیا ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ سن کر ممتاز کے دل کو ایک دھکا سا لگا تھا۔ وہ کب چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا زندہ نہ رہے، لیکن اس کے وہم کا کیا علاج تھا؟ خالد بڑا تندرست بچہ تھا۔ سردیوں میں جب نوکر ایک دفعہ اس کو باہر سیر کے لیے لے گیا تھا تو واپس آ کر اس نے ممتاز کی بیوی سے کہا تھا، بیگم صاحب، آپ خالد میاں کے گالوں پر سرخی نہ لگایا کریں، کسی کی نظر لگ جائے گی۔ یہ سن کر اس کی بیوی بہت ہنسی تھی۔ بیوقوف، مجھے کیا ضرورت ہے سرخی لگانے کی؟ ماشاءاللہ اس کے گال ہی قدرتی لال ہیں۔ سردیوں میں خالد کے گال بہت سرخ رہتے تھے، مگر اب گرمیوں میں کچھ زردی مائل ہو گئے تھے۔ اس کو پانی کا بہت شوق تھا، چنانچہ جب وہ انگڑائی لے کر اٹھتا اور دودھ کی بوتل پی لیتا تو دفتر جانے سے پہلے ممتاز اس کو پانی کی بالٹی میں کھڑا کر دیتا۔ دیر تک وہ پانی کے چھینٹے اڑا اڑا کر کھیلتا رہتا۔ ممتاز اور اس کی بیوی خالد کو دیکھتے اور بہت خوش ہوتے، لیکن ممتاز کی خوشی میں غم کا ایک برقی دھکا ضرور ہوتا اور وہ سوچتا، خدا میری بیوی کی زبان مبارک کرے، لیکن یہ کیا کہ مجھے اس کی موت کا کھٹکا رہتا ہے۔ یہ وہم کیوں میرے دل و دماغ پہ بیٹھ گیا ہے کہ یہ مر جائے گا؟ کیوں مرے گا؟ اچھا بھلا صحت مند ہے، اپنی عمر کے بچوں سے کہیں زیادہ صحت مند۔ میں یقیناً پاگل ہوں۔ اس سے میری حد سے زیادہ بڑھی ہوئی محبت دراصل اس وہم کا باعث ہے، لیکن مجھے اس سے اتنی زیادہ محبت کیوں ہے؟ کیا سارے باپ اسی طرح بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ کیا ہر باپ کو اپنی اولاد کی موت کا کھٹکا لگا رہتا ہے؟ مجھے آخر ہو کیا گیا ہے؟ ممتاز نے جب حسب معمول تینوں کمرے اچھی طرح صاف کر دیے تو وہ فرش پر چٹائی بچھا کر لیٹ گیا۔ یہ اس کی عادت تھی۔ صبح اٹھ کر جھاڑو وغیرہ دے کر وہ گرمیوں میں ضرور آدھے گھنٹے کے لیے چٹائی پر لیٹ جاتا، بغیر تکیے کے۔ اس طرح اس کو لطف محسوس ہوتا تھا۔ لیٹ کر وہ سوچنے لگا، پرسوں میرے بچے کی پہلی سالگرہ ہے، اگر یہ بخیر و عافیت گزر جائے تو میرے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، یہ میرا وہم بالکل دور ہو جائے گا۔ اللہ میاں، یہ سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ دفعتاً اس نے اپنے ننگے سینے پر بوجھ سا محسوس کیا۔ آنکھیں کھولیں تو خالد دیکھا۔ اس کی بیوی پاس کھڑی تھی۔ اس نے کہا، ساری رات بے چین سا رہا ہے، سوتے میں جیسے ڈر ڈر کے کانپتا رہا ہے۔
खालिद मुमताज के सीने पर जोर से कांपा। मुमताज ने उस पर हाथ रखा और कहा, खुदा मेरे बेटे का मुहाफिज हो। मुमताज की बीवी ने खफगी आमेज लहजे में कहा, तौबा, आपको बस वहमों ने घेर रखा है, हल्का सा बुखार है, इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। ये कहकर मुमताज की बीवी कमरे से बाहर चली गई। मुमताज ने हौले हौले बड़े प्यार से खालिद को थपकना शुरू किया, जो उसकी छाती पर औंधा लेटा था और सोते में कभी कभी कांप उठता था। थपकने से वो जाग पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी बड़ी बड़ी सियाह आंखें खोली और बाप को देखकर मुस्कुराया। मुमताज ने उसको चूमा। क्यों खालिद मियाँ, क्या बात है, आप कांपते क्यों थे? खालिद ने मुस्कुराकर अपना उठा हुआ सर बाप की छाती पर गिरा दिया। मुमताज ने फिर उसको थपकाना शुरू कर दिया। दिल में वो दुआएं मांग रहा था कि उसके बेटे की उम्र दराज हो। उसकी बीवी ने खालिद की पहली सालगिरह के लिए बड़ा एहतमाम किया था। अपनी सारी सहेलियों से कहा था कि वो उस तकरीब पर जरूर आए। दर्जी से खास तौर पर उसकी सालगिरह के कपड़े सिलवाए गए। दावत पर क्या क्या चीज होगी ये सब सोच लिया था। मुमताज को ये ठाठ पसंद नहीं था। वो चाहता था कि किसी को खबर ना हो और सालगिरह गुजर जाए, खुद उसको भी पता न चले और उसका बेटा 1 बरस का हो जाए। उसको इस बात का इल्म सिर्फ उस वक्त हो जब खालिद 1 बरस और कुछ दिनों का हो गया हो। खालिद अपने बाप की छाती पर से उठा। मुमताज ने उससे मोहब्बत में डूबे हुए लहजे में कहा, खालिद बेटा, सलाम नहीं करोगे अब्बा जी को? खालिद ने मुस्कुराकर हाथ उठाया और अपने सर पर दुआ दिया, जीते रहो। लेकिन ये कहते ही उसके दिल पर इसके वहम की ज़रब लगी और वो गमो फिक्र के समंदर में गर्क हो गया। खालिद सलाम करके कमरे से बाहर निकल गया। दफ्तर जाने में अभी काफी वक्त था। मुमताज चटाई पर लेटा रहा और अपने वहम को दिलो दिमाग से महव करने की कोशिश करता रहा। इतने में बाहर सहन से उसकी बीवी की आवाज आई, मुमताज साहब, मुमताज साहब, इधर आइए। आवाज में शदीद घबराहट थी। मुमताज चौंक कर उठा और दौड़कर बाहर गया। देखा कि उसकी बीवी खालिद को गुस्ल खाने के बाहर गोद में लिए खड़ी है और वो उसकी गोद में बल पे बल खा रहा है। मुमताज ने उसको अपनी बाहों में लिया और बीवी से जो कांप रही थी पूछा, क्या हुआ? उसकी बीवी ने खौफ ज़दा लहजे में कहा, मालूम नहीं, पानी से खेल रहा था, मैंने नाक साफ की तो दोहरा हो गया। मुमताज की बाहों में खालिद ऐसे बल खा रहा था जैसे कोई इसे कपड़े की तरह निचोड़ रहा है। सामने चारपाई पड़ी थी। मुमताज ने उसको वहां लिटा दिया। मियाँ बीवी सख्त परेशान थे। वो बड़ा बल पे बल खाता रहा और उन दोनों के औसान खता थे कि वो क्या करें। थपकाया, चूमा, पानी के छींटे मारे, मगर उसका तशन्नुज दूर न हुआ। थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद दौरा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया और खालिद पर बेहोशी सी तारी हो गई। मुमताज ने समझा मर गया है। चुनाचे इसने अपनी बीवी से कहा, खत्म हो गया। वो चिल्लाई, ला हौला वला, कैसी बातें मुंह से निकालते हैं। कन्वोल्यूशन थी, खत्म हो गई, अभी ठीक हो जाएगा। खालिद ने अपनी मुरझाई हुई बड़ी बड़ी सियाह आंखें खोली और अपने बाप की तरफ देखा। मुमताज की सारी दुनिया जिंदा हो गई। बड़े ही दर्द भरे प्यार से उसने खालिद से कहा, क्यों खालिद बेटा, ये क्या हुआ था आपको? खालिद के होंठों पर तशन्नुज ज़दा मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुमताज ने उसको गोद में उठा लिया और अंदर कमरे में ले गया। लिटाने ही वाला था कि दूसरी कन्वोल्यूशन आई। खालिद फिर बल खाने लगा, जिस तरह मिर्गी का दौरा होता है। यह तशन्नुज भी उसी किस्म का था। मुमताज को ऐसा महसूस होता कि खालिद नहीं बल्कि वो खुद इस अजियत के शिकंजे में कसा जा रहा है। दूसरा दौरा खत्म हुआ। खालिद और ज्यादा मुरझा गया। उसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखें धंस गईं। मुमताज इससे बातें करने लगा, खालिद बेटे, ये क्या होता है आपको? खालिद मियाँ, उठो ना, चलो फिरो। खालिद, मक्खन खाएंगे आप? खालिद को मक्खन बहुत पसंद था, मगर उसने ये सुनकर अपना सर हिलाकर हाँ न की। लेकिन जब मुमताज ने कहा, बेटे गुग्गू खाएंगे आप, तो उसने नहीफ अंदाज में नहीं के तौर पर अपना सर हिलाया। मुमताज मुस्कुराया और खालिद को अपने गले से लगा लिया। फिर उसकी बीवी
के हवाले किया और उससे कहा, तुम इसका ध्यान रखो, मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ। डॉक्टर साथ लेकर आया तो मुमताज की बीवी के होश उड़े हुए थे। उसकी गैर हाजिरी में खालिद पर तशन्नुज के 3 और दौरे पड़ चुके थे। उनके बायस वो बेजान सा हो गया था। डॉक्टर ने उसे देखा और कहा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, ऐसी कन्वल्यूशन बच्चों को अमूमन आया करती है। इसकी वजह दांत हैं, मैदे में क्रम वगैरह हों तो वो भी इसका बायस हो सकते हैं। मैं दवा लिख देता हूँ, आराम आ जाएगा। बुखार तेज नहीं है, आप कोई फिक्र ना करें। मुमताज ने दफ्तर से छुट्टी ले ली और सारा दिन खालिद के पास बैठा रहा। डॉक्टर के जाने के बाद उसको 2 मरतबा और दौरे पड़े। उसके बाद वो निढाल लेटा रहा। शाम हो गई तो मुमताज ने सोचा शायद अब अल्लाह का फजल हो गया है। इतने अरसे में कोई कन्वल्यूशन नहीं आई, खुदा करे रात इसी तरह कट जाए। मुमताज की बीवी भी खुश थी। अल्लाह ताला ने चाहा तो कल मेरा बेटा खालिद दौड़ता फिरेगा। रात को चूंकि मुकर्ररा औकात पर दवा देनी थी, इसलिए मुमताज चारपाई पर ना लेटा कि शायद सो जाए। खालिद के पंगूड़े के पास आराम कुर्सी रखकर वो बैठ गया और सारी रात जागता रहा, क्योंकि खालिद बेचैन था। कांप कांप कर बार बार जागता था। हरारत भी तेज थी। सुबह 7 बजे के करीब मुमताज ने थर्मामीटर लगा के देखा तो 104 डिग्री बुखार था। डॉक्टर बुलाया। उसने कहा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, ब्रोंकाइटिस है। मैं नुस्खा लिख देता हूँ, 3-4 रोज में आराम आ जाएगा। डॉक्टर नुस्खा लिखकर चला गया। मुमताज दवा बनवा लाया। खालिद को एक खुराक पिलाई, मगर उसको तस्कीन न हुई। 10 बजे के करीब वो एक बड़ा डॉक्टर लाया। उसने अच्छी तरह खालिद को देखा और तसल्ली दी, घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक ना हुआ। बड़े डॉक्टर की दवा ने कोई असर न किया। बुखार तेज होता गया। मुमताज के नौकर ने कहा, साहब बीमारी वगैरह कोई नहीं, खालिद मियाँ को नजर लग गई है। मैं एक तावीज़ लिखवा कर लाया हूँ, अल्लाह के हुक्म से यूं चुटकियों में असर करेगा। 7 कुओं का पानी इकट्ठा किया गया, उसमें यह तावीज़ घोलकर खालिद को पिलाया गया। कोई असर ना हुआ। हमसाई आई, वो एक यूनानी दवा तजवीज़ कर गई। मुमताज ये दवा ले आया, मगर उसने खालिद को न दी। शाम को मुमताज का एक रिश्तेदार आया, साथ उसके एक डॉक्टर था। उसने खालिद को देखा और कहा, मलेरिया है, इतना बुखार मलेरिया ही में होता है। आप इस पर बर्फ का पानी डालिए, मैं कोनेन का इंजेक्शन देता हूँ। बर्फ का पानी डाला गया। बुखार एकदम कम हो गया। दर्जा हरारत 98 डिग्री तक आ गया। मुमताज और उसकी बीवी की जान में जान आई, लेकिन थोड़े ही अरसे में बुखार बहुत ही तेज हो गया। मुमताज ने थर्मामीटर लगाकर देखा, दर्जा हरारत 106 तक हमसाई आई। उसने खालिद को मायूस नजरों से देखा और मुमताज की बीवी से कहा, बच्चे की गर्दन का मनका टूट गया है। मुमताज और उसकी बीवी के दिल बैठ गए। मुमताज ने नीचे कारखाने से अस्पताल फोन किया। अस्पताल वालों ने कहा, मरीज को ले आओ। मुमताज ने फौरन टांगा मंगवाया, खालिद को गोद में लिया, बीवी को साथ बिठाया और अस्पताल का रुख किया। सारा दिन वो पानी पीता रहा था, मगर प्यास थी कि बुझती ही नहीं थी। अस्पताल जाते हुए रास्ते में उसका हल्क बेहद खुश्क हो गया। उसने सोचा उतरकर किसी दुकान से एक गिलास पानी पी ले, लेकिन खुदा मालूम कहाँ से ये वहम एकदम उसके दिमाग में आन टपका, देखो अगर तुमने पानी पिया तो तुम्हारा खालिद मर जाएगा। मुमताज का हलक सूख के लकड़ी हो गया, मगर उसने पानी ना पिया। अस्पताल के करीब तांगा पहुंचा तो उसने सिगरेट सुलगाया। 2 ही कश लिए थे तो उसने एकदम सिगरेट फेंक दिया। उसके दिमाग में ये वहम गूंजा था, मुमताज सिगरेट ना पियो, तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। मुमताज ने तांगा ठहराया। उसने सोचा ये क्या हिमाकत है, ये वहम सब फजूल है। सिगरेट पीने से बच्चे पर क्या आफत आ सकती है। तांगे से उतरकर उसने सड़क पर से सिगरेट उठाया। वापस तांगे में बैठकर जब उसने कश लेना चाहा तो किसी नामालूम ताकत ने उसको रोका। नहीं मुमताज, ऐसा ना करो, खालिद मर जाएगा। मुमताज ने सिगरेट जोर से फेंक दिया। तांगे वाले ने घूर के उसको देखा। मुमताज ने महसूस किया जैसे उसको इसकी दिमागी कैफियत का इल्म है और वो उसका मजाक उड़ा रहा है। अपनी खफत दूर करने के लिए उसने टांगे वाले से कहा,
खराब हो गया था सिगरेट। ये कहकर उसने जेब से एक नया सिगरेट निकाला। सुलगाना चाहा मगर डर गया। उसके दिलो दिमाग में हलचल सी मच गई। इदराक कहता था कि ये औहाम सब फजूल हैं, मगर कोई ऐसी आवाज थी, कोई ऐसी ताकत थी जो उसकी मंतक, उसके इस्तदलाल, उसके इदराक पर गालिब आ जाती थी। टांगा अस्पताल के फाटक में दाखिल हुआ तो उसने सिगरेट उंगलियों में मसल कर फेंक दिया। उसको अपने ऊपर बहुत तरस आया कि वो औहाम का गुलाम बन गया है। अस्पताल वालों ने फौरन ही खालिद को दाखिल कर लिया। डॉक्टर ने देखा है और हालत मखदूश है। खालिद बेहोश था। माँ उसके सराहने बैठी वीरान निगाहों से उसको देख रही थी। कमरे के साथ गुसल खाना था। मुमताज को सख्त प्यास लग रही थी। नल खोलकर ओक से पानी पीने लगा तो फिर वही वहम उसके दिमाग में गूंजा, मुमताज ये क्या कर रहे हो? तुम पानी मत पियो, तुम्हारा खालिद मर जाएगा। मुमताज ने दिल में उस वहम को गाली दी और इंतकामन इतना पानी पिया कि उसका पेट उफर गया था। पानी पी पी कर गुसल खाने से बाहर आया तो उसका खालिद उसी तरह मुरझाया हुआ बेहोश अस्पताल के आहिनी पलंग पर पड़ा था। वो चाहता था कहीं भाग जाए, उसके होशो हवास गायब हो जाए, खालिद अच्छा हो जाए और वो उसके बदले नमूनिया में गिरफ्तार हो जाए। मुमताज ने महसूस किया कि खालिद अब पहले से ज्यादा जर्द है। उसने सोचा ये सब उसके पानी पी लेने का बायस है। अगर वो पानी ना पीता तो जरूर खालिद की हालत बेहतर हो जाती। उसको बहुत दुख हुआ। उसने खुद को बहुत लानत मलामत की, मगर फिर उसको ख्याल आया कि जिसने ये बात सोची थी कि वो मुमताज नहीं कोई और था, ये और कौन था? क्यों उसके दिमाग में ऐसे वहम पैदा होते थे? प्यास लगी थी, पानी पी लिया, उससे खालिद पर क्या असर पड़ सकता है? खालिद जरूर अच्छा हो जाएगा। परसों उसकी सालगिरह है, इंशाल्लाह खूब ठाठ से मनाई जाएगी। लेकिन फौरन ही उसका दिल बैठ जाता। कोई आवाज उससे कहती, खालिद 1 बरस का होने ही नहीं पाएगा। मुमताज का जी चाहता कि वो इस आवाज ही से निकाल दे, मगर ये आवाज तो खुद उसके दिमाग में पैदा होती थी। खुदा मालूम कैसे होती थी, क्यों होती थी। मुमताज इस कदर तंग आया कि उसने दिल ही दिल में अपने औहाम से गिड़गिड़ा कर कहा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, क्यों तुम मुझ गरीब के पीछे पड़ गए हो? शाम हो चुकी थी। कई डॉक्टर खालिद को देख चुके थे, दवा दी जा रही थी, कई इंजेक्शन भी लग चुके थे, मगर खालिद अभी तक बेहोश था। दफातन मुमताज के दिमाग में ये आवाज गूंजी, तुम यहाँ से चले जाओ, फौरन चले जाओ, वरना खालिद मर जाएगा। मुमताज कमरे से बाहर चला गया, अस्पताल से बाहर चला गया। उसके दिमाग में आवाजें गूंजती रहीं। उसने अपने आप को उन आवाजों के हवाले कर दिया। अपनी हर जुम्बिश, अपनी हर हरकत उनके हुक्म के सुपुर्द कर दी। ये उसे एक होटल में ले गईं। उन्होंने उसको शराब पीने के लिए कहा। शराब आई तो उसे फेंक देने का हुक्म दिया। मुमताज ने हाथ से ग्लास फेंक दिया तो और मंगवाने के लिए कहा। दूसरा ग्लास आया तो उसे भी फेंक देने के लिए कहा। शराब और टूटे हुए ग्लासों के बिल अदा करके मुमताज बाहर निकला। उसको यूं महसूस होता था कि चारों तरफ खामोशी ही खामोशी है, सिर्फ उसका दिमाग है जहां शोर बरपा है। चलता चलता वो अस्पताल पहुंच गया। खालिद के कमरे का रुख किया तो उसे हुक्म हुआ, मत जाओ उधर, तुम्हारा खालिद मर जाएगा। वो लौट आया। घास का मैदान था, वहां एक बेंच पड़ी थी, उस पर लेट गया। रात के 10 बज चुके थे। मैदान में अंधेरा था, चारों तरफ खामोशी थी। कभी कभी किसी मोटर के हॉर्न की आवाज उसी खामोशी में खराश पैदा करती हुई गुजर जाती। सामने ऊंची दीवार में अस्पताल का रोशन क्लॉक था। मुमताज खालिद के मुतालिक सोच रहा था, क्या वो बच जाएगा? ये बच्चे क्यों पैदा होते हैं जिन्हें मरना होता है? वो जिंदगी क्यों पैदा होती है जिसे इतनी जल्दी मौत के मुंह में चला जाना होता है? खालिद जरूर। एकदम उसके दिमाग में एक वहम फटा। बेंच पर से उतरकर वो सजदे में गिर गया। हुक्म था, इसी तरह पड़े रहो जब तक खालिद ठीक न हो जाए। मुमताज सजदे में पड़ा रहा। वो दुआ मांगना चाहता था मगर हुक्म था, मत मांगो। मुमताज की आंखों में आंसू आ गए। वो खालिद के लिए नहीं, अपने लिए दुआ मांगने लगा।
खुदाया मुझे इस अजियत से निजात दे, तुझे अगर खालिद को मारना है तो मार दे, ये मेरा क्या हशर कर रहा है तू। दफतन उसे आवाजें सुनाई दी। उससे कुछ दूर दो आदमी कुर्सियों पर बैठे खाना खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। बच्चा बड़ा खूबसूरत है, माँ का हाल मुझसे तो देखा नहीं गया। बेचारी हर डॉक्टर के पांव पड़ रही थी। हमने अपनी तरफ से तो हर मुमकिन कोशिश की, बचना मुहाल है। मैंने ये कहा था माँ से कि दुआ करो बहन। एक डॉक्टर ने मुमताज की तरफ देखा जो सजदे में पड़ा था, उसको जोर से आवाज दी, ए क्या कर रहा है तू, इधर आ। मुमताज उठकर दोनों डॉक्टरों के पास गया। एक ने उससे पूछा, कौन हो तुम? मुमताज ने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर जवाब दिया, जी मैं एक मरीज। डॉक्टर ने सख्ती से कहा, मरीज हो तो अंदर जाओ, यहाँ मैदान में डंटर क्यों पेलते हो? मुमताज ने कहा, जी मेरा बच्चा है उधर उस वार्ड में। वो तुम्हारा बच्चा है जो? जी हाँ, शायद आप उसी की बातें कर रहे थे। वो मेरा बच्चा है खालिद। आप उसके बाप हैं? मुमताज ने अपना गमो अंदोज से भरा हुआ सर हिलाया। जी हाँ, मैं उसका बाप हूँ। डॉक्टर ने कहा, आप यहाँ बैठे हैं, जाइए आपकी वाइफ बहुत परेशान है। जी अच्छा, कहकर मुमताज वार्ड की तरफ रवाना हुआ। सीढ़ियां तय करके जब ऊपर पहुंचा तो कमरे के पास उसका नौकर रो रहा था। मुमताज को देखकर और ज्यादा रोने लगा। साहब, खालिद मियाँ फौत हो गए। मुमताज अंदर कमरे में गया। उसकी बीवी बेहोश पड़ी थी। एक डॉक्टर और नर्स उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मुमताज पलंग के पास खड़ा हो गया। खालिद आंखें बंद किए पड़ा था। उसके चेहरे पर मौत का सुकून था। मुमताज ने उसके रेशमी बालों पर हाथ फेरा और दिल चीर देने वाले लहजे में उससे पूछा, खालिद मियाँ, गुग्गू खाएंगे आप? खालिद का सर नफवी में ना हिला। मुमताज ने फिर दरखास्त भरे लहजे में कहा, खालिद मियाँ, मेरे वहम ले जाएंगे आपको अपने साथ। मुमताज को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे खालिद ने सर हिलाकर हाँ की है।